बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Dear students, most welcome to first year physics class. Kindly subscribe my YouTube channel for getting latest video of your physics class. Now, today our lesson is chapter 1, short question, part 4 from all Punjab boards exam from 2011 to 2019. Now we come to our today lesson, that is a short question number 43. Describe the principle of homogeneity. Describe the principle of homogeneity of dimension analysis. This is our question now. What is the homogeneity principle? If the dimension of physical quantities on both sides of equations are same, then equation will be dimensionally correct. So this is called the principle of homogeneity. This is called homogeneity principle. If we have any equation and we will take the dimension on both sides of equation, if dimension on both sides of equations are same, then we say that this equation is dimensionally correct and homogeneity principle will be applicable. This is called the कोई भी इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल f इज इक्वल m है, इसमें हम बोथ साइड पर क्या करेंगे, डायमेंशन अप्लाई करेंगे. अगर डायमेंशन हमारे दोनों तरफ के हो, इक्वल हो, करेक्ट हो, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, देन वी से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट and homogeneity principle is applicable. Now next question, that is a 44. Does the dimension analysis give any information on the constant of proportionality? तो क्या dimension analysis जो है give any information on constant of proportionality? ये आपके पास question है. That may appear in algebraic expression. ये कहते हैं किसी भी algebraic expression में dimension analysis क्या give any information about the constant of proportionality? This question repeated 5 times. ये क्वेश्चन 5 दफा आ चुका है. तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये. तो डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन एनी एक्सप्रेशन जी. ये डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन जी. तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ये डायमेंशन एनालिसिस जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं देता जी. डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जी. जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली जी. यानी इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट से या थ्योरेटिकली हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. एग्जांपल आप देख लें. इस एग्जांपल में आपके पास क्या है, t इज इक्वल टू पाई l और g स्क्वायर रूट. ये आपके पास क्या है, 2 पाई आपके पास क्या है, कांस्टेंट है. तो कहते हैं इसकी जो वैल्यू है, कहते हैं ये डायमेंशनल कांस्टेंट में इंक्लूडेड नहीं होती थी, क्योंकि ये आपके पास 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है. तो सो अभी डायमेंशन एनालिसिस did not provide any information about the constant of proportionality. So this dimension analysis does not provide any information about the value of constant of proportionality. 2 pi is a constant, especially pi is a constant. Its value can be found out from the experiments or theoretically, and dimension analysis did not provide any information about the constant of proportionality in any algebraic expression. So this question is the most important, and this question is repeated 5 times in the previous board exams. Now our next question, that is the write the dimension of pressures. तो ये क्वेश्चन 17 टाइम्स क्या हो चुका है, सबका बोर्ड में अपीयर हो चुका है 17 टाइम्स ही. तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया जी. ये हमारे पास क्या फार्मूला है, हमने इसका डायमेंशन अप्लाई कर दिया, एंड देन ये फोर्स का डायमेंशन एंड देन एरिया का डायमेंशन.
तो डी स्टूडेंट्स, जब भी हमने अपना किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास फोर्स पर एरिया जो ये आपके पास क्या है, प्रेशर की फार्मूला है। इसमें देखिए फोर्स का डायमेंशन है दैट इज mlt इनवर्स 2 एंड एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका जो डायमेंशन सॉल्व हो गया l इनवर्स t इनवर्स 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रेशर के डायमेंशन आ गए जी। नेक्स्ट आपके पास जी राइट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ये आपका 16 टाइम जो है सबका बोर्ड में क्या हो चुका है, रिवाइज हो चुका है, आ चुका है। तो डेफिनेटली हमें डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या है, डेंसिटी फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज ये हमारे पास क्या डेंसिटी का सिंबल है, इस पर हमने डायमेंशंस क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। दैट इज मास डायमेंशन एंड वॉल्यूम डायमेंशन। अब हमने क्या किया, उनके स्पेसिफिक सिंबल यहाँ पे लगा दिए, कैपिटल M विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज द मास डायमेंशन एंड देन वॉल्यूम डायमेंशन L क्यूब। तो ये आपके पास L क्यूब जो है ऊपर आके इसकी पावर -3 होगी। सो ये आपके पास क्या है MP, ये आपके पास P नहीं कहना बल्कि इसे डेंसिटी कहना है, रो का सिंबल है और इस ml इनवर्स 3। तो ये हमारे पास क्या है डेंसिटी के डायमेंशन है। तो डिस्टेंस हमें कोई भी डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए और उसमें जो जो फिजिकल क्वांटिटी जो फैक्टर जो है यूज हो रहे हैं हमें उसका डायमेंशंस का पता होना चाहिए। So by this we can find out its dimension of the given physical quantity. Next question हमारे पास है जी write the dimension of velocity। तो ये आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन हम लिखने हैं तो डेफिनेटली जैसे क्या फार्मूला पता हो, ये आपके पास वेलोसिटी के डायमेंशन फार्मूला डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम्स। तो दैट इज अ फार्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो आपका d is the distance, it considered as a length in form of dimension and t is the time। so हमने क्या कर दिया इस केस में, यहाँ पर डायमेंशन अप्लाई कर दिए l/t। तो ये t ऊपर आ गया तो l t इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है डायमेंशन आ गए वेलोसिटी के डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायमेंशन हमने क्या करने, राइट करने हैं जी। तो फोर्स के डायमेंशन देखें, फार्मूला देखें, वही जो मैंने बताई बात कि आप पास किसी भी क्वांटिटी है तो उसके आप पास क्या फार्मूला आना चाहिए। तो फोर्स F इज इक्वल टू M में फार्मूला है। तो M से मुराद मैस है, मैस का डायमेंशन अप्लाई कर दिया। A से मुराद एक्सेलरेशन है, हमने A का डायमेंशन क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। आगे हम डायमेंशन अप्लाई किए, मैस का डायमेंशन ये कैपिटल M विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड एक्सेलरेशन डायमेंशन दैट इज LT इनवर्स 2 एंड सो हमने मल्टीप्लाई कर लिया MLT इनवर्स 2। तो ये हमने इस तरीके से क्या कर दिए, फोर्स के डायमेंशन जो वो फाइंड आउट कर लिए हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जी स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are dimension and units of gravitational constant G in the formula F is equal to G m1 m2 r square G। तो आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का कानून तजाज़ुब। तो ये वो इक्वेशन है F is equal to G m1 m2 और r square। G से मुराद क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 फर्स्ट मास है, m2 सेकंड मास है, r जो है डिस्टेंस बिटवीन देम है। तो F इज फोर्स। तो कह रहा है कि इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का हमने डायमेंशन फाइंड आउट करना है और इसकी यूनिट बतानी है जी। ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है और ये 12 टाइम्स का हो चुका है, सबका बोर्ड में देखें डी स्टूडेंट्स रिपीट हो चुका है जी। तो ये देखें हमारे पास डी स्टूडेंट्स न्यूटन का कानून तजाज़ुब का फार्मूला लिखा है। अब हमने इसे रीअरेंज किया है। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू G F आर स्क्वायर m1 m2। जस्ट हमने इसे क्या किया, रीअरेंज किया जी। तो हमें क्यों यहाँ से G चाहिए था, F आर स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, F आर स्क्वायर बन गया। m1 m2 क्या इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया जी। जस्ट हमने इसमें इस फार्मूले को रीअरेंज किया मैथमेटिकली और उसके बाद अगले स्टेप हमने क्या कर दी, सब पर डायमेंशन हमने अप्लाई कर दिए। तो ये आपके पास फोर्स के डायमेंशन दैट इज MLT पावर -2 एंड आगे आपके पास क्या लेंथ एंड डिस्टेंस के डायमेंशन r स्क्वायर है तो l स्क्वायर बन गया। m1 m2 ये दोनों मैसेज हैं, सो mm जो है इधर हमने डायमेंशन अप्लाई कर दी। तो कहते हैं आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास डायमेंशन बन गए हैं और ये हमने सॉल्व किया क्योंकि मैथ्स 2 दफे नीचे। तो ये आपके पास क्या है, जब दो बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, एक पावर 2 बन गई तो ऊपर आ क्या होगी, पावर -2 बन गई, m1 -2। ये इस तरह L और L स्क्वायर मल्टीप्लाई L3 बन गया एंड t पावर -2
एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन यानी सॉल्विंग तो m इनवर्स 1 एंड l क्यूब एंड t इनवर्स 2, ये आपके पास क्या g के डायमेंशन बन गए। और कहता है ये g के फार्मूले से हमने क्या करना है, इसकी यूनिट भी फाइंड आउट करनी है। अगर आप देखें फोर्स की यूनिट न्यूटन है, हमने यहाँ पे न्यूटन लगा दी है और आगे r आपके पास क्या डिस्टेंस है, इसके ऊपर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। सो हमने क्या कर लिया यहाँ पर इसका यूनिट लगा दी मीटर जी, इसके ऊपर स्क्वायर है, लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या है इसका मिनट हमने स्क्वायर लगा दिया, मीटर स्क्वायर बन गया एंड डिवाइडेड बाय m1 m2, दो दफा मैच है तो इनकी यूनिट क्या है, दोनों दफा मल्टीप्लाई होकर बन केजी स्क्वायर बन गई जी। सो इस तरीके से हमारे पास क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 या डिवाइड करके लिख लें तो ये हमारे पास क्या है इसकी यूनिट भी निकाल लीजिए। तो ये डी स्टूडेंट बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। Now next question that is show that equation s is equal to vit plus half at square is dimensionally correct. So ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई डी स्टूडेंट्स, तो वी हैव टू चेक इट is it dimensionally correct or not. So method is that we will take equation, this equation left hand side we do and then step by step we will take dimension on right hand side and we will check. तो s इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमने क्या कर इस पे डायमेंशन अप्लाई कर दिए हैं। इधर लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस s है इसके डायमेंशन एंड देन वी आई वेलोसिटी है इसका डायमेंशन हमने अलग से अप्लाई कर दिया, देन t इसका डायमेंशन प्लस आगे आपके पास आप a एक्सेलरेशन का डायमेंशन, देन t टाइम का डायमेंशन हमने अलग दोनों राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमने डी स्टूडेंट्स डायमेंशन क्या कर दिए अप्लाई कर दिए। एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ देखें ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो l होता है, ये हमने लगा दिया है। आगे वी आई के आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के डायमेंशन ये हमने एल टी इनवर्स 1 लगा दिए। आगे स्मॉल टी के टाइम है, टाइम के डायमेंशन कैपिटल टी हमने यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिए हैं, प्लस 1/2 ऐसे ही है, ये नंबर है और आप पता है नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको वैसे ही रहने दें। आगे आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डायमेंशन इज दैट इज एल टी इनवर्स 2, हमने एक्सेलरेशन के डायमेंशन लगा दिए। टी इज द टाइम एंड हमने टाइम के डायमेंशन लगा दी, ऊपर स्क्वायर है तो सब आपके पास टी स्क्वायर बन गया जी। अब इसमें देखें जी डी स्टूडेंट्स हम जो है लेफ्ट साइड पे ये एल आ गई, इसी तरीके से कंटिन्यू हमने किया। राइट हैंड साइड पे आप देखें तो टी इनवर्स एंड टी प्लस जी ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं जी। जैसे आप +1 -1 करते हैं तो आपके पास कैंसिल हो खत्म हो जाता है। सेम लाइक दैट टी इनवर्स 1 और टी प्लस 1 जी, ये टी के ऊपर पावर नहीं है तो इसका मतलब ये टी पावर +1 है, टी इनवर्स है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो रह क्या जाएगा एल रह जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो एल आपके पास -1 है, टी आपके पास है इधर, टी हमारे पास क्या है जी यहाँ पर इसको तो यहाँ आप देखें डिस्प्लेट, ये देखें आपके पास टी इधर यहाँ हमारे पास इधर -1 है ये देखें, और इधर आगे आप पास क्या है टी यहाँ आप पास क्या इधर +1 है जी। यहाँ इसकी पावर क्या है नहीं लिखी लेकिन ये आप इसकी +1 ही कंसिडर करें, ये आप पास डायमेंशन। ये आप देखें टी -1 टी इनवर्स 1 टी प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया तो सिर्फ एल रह गया जी बाकी जी, प्लस आ गया आप पास 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें इस साइड पे टी इनवर्स 2 एंड टी +2 जी, यहाँ पर भी इसी तरह ये यहाँ इस साइड पे भी क्या है ये आपस में कैंसिल हो गए हैं। ये आप यहाँ देखें ये टी इनवर्स 2 दैट इज, और ये आगे आप पास क्या है टी यहाँ पे क्या है +2। ये साइड पे देखें आप इक्वेशन में यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, ये डायमेंशन के अंदर ये दोनों क्या करें एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर भी आपके पास क्या रह गया एल ही रह गया जी। अब आप देखें एलसीएम लिया, आप इन दोनों को ऐड कर लिए जी, एल डायमेंशन प्लस 1/2 एल डायमेंशन, तो ये आपके पास क्या आ गया 3/2 इंटू एल आ गया जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एल है एल डायमेंशन यानी कि, और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे आपका 3/2 एल है। ये हमने ऐड नहीं किया लेकिन याद रखें 3/2 यहाँ एक नंबर है तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है, लिहाजा इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो सो डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ये आप देखें एल है और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या एल है। इस तरीके से पता चला कि हमने ऑब्जर्व किया dimension on left hand side of equation is equal to dimension on right hand side of equation. So equation s is equal to vit plus half at square is dimensionally correct. तो यही हमारा टारगेट था और ये हमने इस पे कर ली है। If you have any question then you can ask question. Now our next question shows that equation e is equal to mc square is dimensionally correct. This is our equation question that e is equal to mc square is dimensionally correct. We have to find out this 8 times repeated these students, and so
we take this equation, E is the energy and M is the mass. This M is the mass and C is the speed of light. So we take dimension on both hand side. This E energy is dimension on left hand side. And energy it is equal to work. Energy and work, they are nearly same to each other and their formula is same. Energy is equal to work done and work done formula, that is FD. So हमने इस पे डायमेंशन अप्लाई कर दिया. F is force and D is the displacement. यहाँ आप देखें फोर्स का फॉर्मूला M भी हमने अप्लाई कर दिया और आगे डिस्प्लेसमेंट D है. और यहाँ हम देखें हमने मास का डायमेंशन ये आपके पास M है और आगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन दैट इज LT इनवर्स 2 है एंड देन डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन L. और हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया. M L2 टाइम मल्टीप्लाई होकर L स्क्वायर बन गए एंड देन T इनवर्स 2. तो सो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास डायमेंशन है दैट इज ML स्क्वायर इनटू T इनवर्स 2 डायमेंशन. तो ये हमारे पास क्या एनर्जी के डायमेंशन, मीन डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमने इन डायमेंशंस को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लीजिए. आफ्टर दैट नाउ वी टेक राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज mc स्क्वायर. M इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये आपके पास m के डायमेंशन और यहाँ c से मुराद क्या, स्पीड ऑफ लाइट है. लिहाजा जो स्पीड के डायमेंशन होंगे वही c के डायमेंशन भी होंगे क्योंकि c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है जी. तो जो स्पीड के डायमेंशन है वही आपके पास क्या है, जो स्पीड के डायमेंशन होंगे वही उसके जो डायमेंशन होंगे वो स्पीड के डायमेंशन v के जो डायमेंशन होंगे वही डायमेंशन c के लिए हम यूज करेंगे. ये देखिए LT इनवर्स 1 लगा दी, ऊपर इसका स्क्वायर था सो हमने ये विद इन द स्क्वायर कर लिया जी. अब इससे हमने सॉल्व किया M दैट इज L स्क्वायर T इनवर्स -2. ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई. अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं. तो ये कंपैरिजन करें तो यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है दैट इज ML स्क्वायर T इनवर्स 2 और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है MC स्क्वायर के वो भी आपका ML स्क्वायर T इनवर्स 2. सो हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन and right hand side dimension both are equal to each other. So this equation is equal to MC square is dimensionally correctly. तो हमारे पास ये भी हमने क्या कर प्रूव कर दिया है. तो डिस्टेंस तरीकाकार इसका ये है कि हम डायमेंशन दोनों साइड पे लेते हैं, तो इक्वेशन के दोनों साइड पे डायमेंशन लेते हैं और जब डायमेंशन लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन एंड दे आर इक्वल. So we say that our equation is dimensionally correct. So this is our method. Now next question. That is Vf is equal to Vi plus At. This is our equation, first equation of motion as you study in class 10. So we have our target is that that is first equation of motion is dimensionally correct. The same procedure is that we will take left hand side first. So Vf that is the final velocity after some time t. So we take a dimension that is Lt inverse because velocity or speed dimension is same. Whether either it is of initial velocity or final velocity, it has same dimension. So we have applicable here. That is LT inverse 1. And then right hand side of equation that is Vi plus At. Vi is the initial velocity and A is the acceleration and T is the time. So Vi dimension that is LT inverse 1 and plus after then A is there, acceleration dimension A LT inverse 2 and this is the T dimension. And then we have to solve Vi plus At. तो ये हमारे पास LT इनवर्स 1 है और आगे हमने फिर से सॉल्व किए तो ये आपके पास क्या सॉल्व होके LT इनवर्स 1 आ गए और अब ये 2 टाइम है तो ऐड होके ये 2 LT इनवर्स मान जाएंगे. ठीक है. और जैसे आप बताया 2 क्या एक नंबर है, इट इज अ डायमेंशनलेस. ये बेचारा मस्कीन होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है नंबर्स का, तो लिहाजा इसको हमने रिजेक्ट कर दिए. तो so it means that dimension on the left hand side, yeah, but dimension on left hand side that is equal to dimension on right hand side. तो ये आपके पास क्या है, dimension on right hand side मैंने rectangle बना दिए. So left hand side dimension is equal to dimension on right hand side. So our equation that is Vf is equal to Vi plus At, which is dimensionally correct. Now next our question shows that relation V is equal to F lambda. V is equal to F lambda is dimensionally correct. ये हमारे पास अब इक्वेशन है. तो ये आपने 10th क्लास में स्टडी की थी. दैट इज स्पीड ऑफ साउंड के लिए, ये वेव के लिए, स्पीड ऑफ वेव के लिए V जो F lambda. तो इस इक्वेशन को आपने स्टडी की है. दैट इज V जो F lambda है एंड देन V लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द स्पीड एंड इट्स डायमेंशन LT इनवर्स 1. राइट हैंड साइड आपके पास क्या है F lambda है
तो एफ से मुराद क्या फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा से मुराद क्या वेव लेंथ है। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है टाइम का रेसिप्रोकल होती है, ये बात याद रख लीजिए। ये देखिए आपका जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपने पढ़ा था, दैट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, या एफ इज इक्वल टू 1/t। जब टी ऊपर आता है तो ये इनवर्स बन जाता है, तो ये आप उसकी जगह हमने टी इनवर्स कर दिए। और लैम्डा आप पास वेव लेंथ है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस ट्रफ है, या आप पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेरिफेक्शन या टू कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस जो था, दैट वाज कॉल्ड अ वेव लेंथ। तो डिस्टेंस के लिए हम फिर लेंथ यूज करते हैं, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, एल टी इनवर्स 1 बन गया। सो आप देखें डायमेंशन ऑफ वी on left hand side, that is LT inverse 1, and dimension of F lambda on right hand side, it is also equal to LT inverse 1. So dimension on left hand side is equal to dimension on right hand side. So it means that our equation V is equal to F lambda is dimensionally correct. So this was our target. And now next question is that write the dimension of angular momentum. Write the dimension of angular momentum. So angular momentum formula, that is L is equal to mRV. ये एंगुलर मोमेंटम इंशाल्लाह आप चैप्टर 5 में स्टडी करेंगे, ज़ावियाई एंगुलर मोमेंटम। तो m से मुराद आपके पास क्या है, मैस है, r से मुराद क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और v से मुराद क्या है, इसमें स्पीड या वेलोसिटी है। तो अब हम क्या करें, इनके डायमेंशन सेपरेटली पुट कर दिए। ये आपके पास मैस के डायमेंशन, एंड देन r आपके पास रेडियस या डिस्टेंस में कंसिडर होता है, इसके डायमेंशन आपके पास क्या है, L है, और V आपके पास स्पीड है, दैट इज एल टी इनवर्स 1। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके पास क्या है, MS के टी इनवर्स 1 आ गए। तो ये हमने इस तरीके से डायमेंशन क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। Dear student, if you have any question, then you can ask. Now, next our question is the wavelength lambda of wave depends on the speed v. This is the wavelength lambda. Wavelength lambda of a wave depends on the speed v of the wave and its frequency f. तो वेव लेंथ डिस्टेंस बताया जा रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, जो वेव लेंथ लैम्डा है वो डिपेंड करती है स्पीड v ऑफ द वेव पे एंड फ्रीक्वेंसी f पे डिपेंड करती है। कहता है हमें पता है कि ये आपके पास लैम्डा जो है उसका डायमेंशन l के बराबर है, बताया जा रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है दैट इज एल टी इनवर्स 1, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t इनवर्स 1। तो डिसाइड दैट which is correct, which equation is correct, either f is equal to v lambda is correct or f is equal to v over lambda is correct। तो ये आपके पास बड़ा अहम क्वेश्चन है। हमें बताया जा रहा है कि वेव लेंथ लैम्डा जो है वो डिपेंड करता है स्पीड v पर, और उसकी फ्रीक्वेंसी f पर डिपेंड करता है। फिर हमें इनके डायमेंशन बताए जा रहे हैं कि जो डायमेंशन है वो आपके पास लैम्डा का डायमेंशन गिवन है l है, स्पीड के डायमेंशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन गिवन है। हमें दो ऑप्शन दी गई है, एफ इज इक्वल वी लैम्डा करेक्ट डायमेंशनली या एफ इज इक्वल वी ओवर लैम्डा करेक्ट डायमेंशनली। अब हम बारी बारी इनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा जी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ये देखें, ये आपके पास वी एफ इज इक्वल वी ओवर लैम्डा हमने इक्वेशन ली है पहले, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी ली है, तो ये आपके पास रेसिप्रोकल होती है, यानी एफ फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/t होती है। ये हमने इसका यहाँ पे डायमेंशन ले लिया, ये ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा। सो आप पास लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन एफ टी इनवर्स 1 आ जाएगी। आगे हमने राइट हैंड साइड ले ली वी ओवर लैम्डा, तो वी से हमारा स्पीड है, इसका डायमेंशन हमने इसमें अप्लाई कर दिया एल टी माइनस 2, और लैम्डा आपके पास क्या है, लेंथ है, इसका डायमेंशन हमने अप्लाई कर दिया। कहते हैं एल और एल कैंसिल हो गया आपस में इसमें, तो टी इनवर्स 1 आ गया। यूँ हमने वी ओवर लैम्डा का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए। और इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके इसके डायमेंशन देखें, दैट इज फ्रीक्वेंसी डायमेंशन टी इनवर्स 1 है, और राइट हैंड साइड जो वी ओवर लैम्डा इसके डायमेंशन क्या टी इनवर्स 1 है। सो डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, सो एफ इज इक्वल वी ओवर लैम्डा इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको हमने चेक कर लिए, इक्वेशन एफ इज इक्वल वी ओवर लैम्डा क्या है, इज डायमेंशनली करेक्ट है जी। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, दैट इज एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा को देखते हैं। ये हमारे पास क्या सेकंड इक्वेशन भी है। तो सेकंड इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमने अप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी है दैट इज टी इनवर्स 1 इसके डायमेंशन, और v इनटू लैम्डा, तो v स्पीड है, इसके डायमेंशन एल टी माइनस 1, और लैम्डा के डायमेंशन आपके पास लेंथ है, वेव लेंथ है, दैट इज डिस्टेंस, इस डायमेंशन इज लेंथ। सो हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये डायमेंशन एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 आ गए। अब ये देखें
डायमेंशन राइट हैंड साइड वी लैम्डा की जो डायमेंशन एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी डायमेंशन ओनली टी इनवर्स 1 है। इसका मतलब ये दोनों डायमेंशन आपस में इक्वल नहीं है जी। तो इसका मतलब क्या है, ये देखें डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, सो एफ इज इक्वल वी लैम्डा इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट थी? क्योंकि हमने इस इक्वेशन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन लिए हैं, और डायमेंशन लेने के बाद हमें पता चला है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। सो दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल वी लैम्डा इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। Now important question, that is write the dimension of angular momentum। ये हम लास्ट पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो L इज इक्वल टू एम आर वी, तो यहाँ हमने सिंपल डायमेंशन अप्लाई कर दिया और इनकी वैल्यूज पुट कर दी। एम से मास है, मास का डायमेंशन, आर रेडियस है उसका डायमेंशन, वी आपका स्पीड है उसका डायमेंशन। तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपका डायमेंशन आ गए। नेक्स्ट आपका डिफरेंट क्वेश्चन 56 इज चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशनशिप। तो v इज इक्वल एफ एल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर रूट, इसको हमें चेक करना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें देखिए स्पीड है, तो इसके डायमेंशन हमारे पास क्या है, टी इनवर्स 1 है जी। और आगे हमने राइट हैंड साइड डायमेंशन जो देख रहे हैं एफ एल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर रूट, तो एफ से मुराद फोर्स है, हमने इसमें फोर्स की डायमेंशन अप्लाई कर दिए, और एल से मुराद लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन अप्लाई कर दिए, एम से मुराद मैस इसकी लगा दिए, और आगे हम क्या करें से स्क्वायर रूट है इसकी पावर को हमने 1/2 में चेंज कर लिया है। तो एम एल इनवर्स 2 मल्टीप्लाई एल, इनको हमने सॉल्व किया है। तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ये आया डायमेंशन राइट हैंड साइड दैट इज एल टी इनवर्स 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन हमारे पास क्या है जी इसमें, दैट इज एल टी इनवर्स 1 जी। तो इट्स मीन दैट डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन दैट इज लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। सो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्टली। तो सिंपल वे है, हम दोनों कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसको डायमेंशनली हमने चेक करना हो तो हम ये देखते हैं कि दोनों साइड पे हम डायमेंशन लेते हैं, डायमेंशन लेने के बाद हम देख लेते हैं कि इक्वल है, तो इट्स मीन दैट दैट इज अ डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन दैट इज 57 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन एंड एस अ यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करें और स्पीड भी बता दें। ये 4 टाइम्स का हो चुका है, रिपीट हो चुका है सबका बोर्ड में। या फिर आपको क्या दिया जाता है, फाइंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ड्रैग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज F6 by eta और Vt। ये आप देखें, अगर ये F6 by eta और Vt दे दें तो ये तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है जी। यानी यहाँ उसने आपको स्टोक्स का थ्योरम ये दे दिया है, सिंपल इसको आपने रीअरेंज कर लेना है। अगर ये वाला ये दूसरा ऑप्शन जिसने दिया है ये बता दे तो ये आपको फ्री के नंबर है। अगर सिंपल कह दे जी फाइंड डायमेंशन ऑफ ऐसे यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इसका, सिर्फ इतना कह दे फिर आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, F इज 6 by eta और Vt। और यहाँ से हमने ईटा एक साइड पे, ईटा जो है डिस्टेंस हमने पहले भी बात की थी कि इट इज ऑफ विस्कोसिटी यानी फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। यानी कोई लिक्विड जो है जितना तेजी से बहता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, और कोई लिक्विड जितना आहिस्ता बहता है फ्लो करता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक फ्लो ऑफ हनी, शहद का बहना उसकी विस्कोसिटी क्या बहुत ज़्यादा होती है। फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड क्या लें, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इस इक्वेशन को हमने, ये इक्वेशन जो हमने इधर लिखी है दैट इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। और 6 एक नंबर है, पाई एक कांस्टेंट है, ईटा आपके पास विस्कोसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी, आर आपके पास क्या है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी की, और वी से मुराद क्या है टर्मिनल वेलोसिटी की। तो ये आप देखें F6 by eta और Vt इंशाल्लाह स्टोक्स थ्योरम में आप चैप्टर नंबर 6 में स्टडी करेंगे, दैट इज स्टोक्स थ्योरम एंड बर्नौली इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये चैप्टर बड़ा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में। हमने ईटा रीअरेंज कर लिया मैथमेटिकली, और इनमें हमने डायमेंशन अप्लाई कर दिए। फोर्स का डायमेंशन ये आपके पास फोर्स है, इसके डायमेंशन हमने देखिए इंसर्ट कर दिया MLT इनवर्स 2, और आगे आपके पास के रेडियस के डायमेंशन स्फेरिकल रेडियस, और आगे टर्मिनल स्पीड इसके डायमेंशन LT इनवर्स 1, स्पीड डायमेंशन सेम होते हैं हर जगह। तो ये हमने से सॉल्व किया है। तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास के जो डायमेंशन आ गए ईटा के दैट इज ML इनवर्स 1 T इनवर्स 1 जी। आगे आपने इसकी यूनिट देखनी है, तो ये देखें कि फार्मूले में देखें M है, तो M से मुराद यहाँ मैस है, ये आप देखें किलोग्राम है, और ये आगे L इनवर्स 1 डिस्टेंस की यूनिट है तो मीटर इनवर्स हो गया जी।
इसी तरीके से आपके पास टाइम है तो इसकी यूनिट आपके पास के सेकंड होती है, ये टाइम इनवर्स है, टी इनवर्स है तो ये आपके पास के सेकंड इनवर्स है। यूँ हमने इस तरीके से ये क्या कर यूनिट फाइंड आउट कर ली है। या आप पास का इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स 2 भी होती है, तो ये दोनों यूनिट्स गैस की पॉसिबल है जी। इस तरीके से हमने क्या कर ये दोनों यूनिट्स जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली जी। तो डी स्टूडेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Our next question, write down the 2 uses of dimension analysis. एक क्वेश्चन 3 टाइम्स क्या हो गया रिपीट हुए जी आपके पास, 2 यूज लिखने हैं। तो कहता है जी डायमेंशन एनालिसिस जो है इसके यूजेस तो रहते हैं लेकिन यहाँ 2 यूजेस हमने मेंशन करने हैं। कहता है इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन जो है चेक करने के लिए यूज होता है। जैसे हम जो है कोई इक्वेशन लेते हैं उसके दोनों साइड पे हम क्या लेते हैं डायमेंशन लेते हैं और both sides of dimension equal होते हैं तो that is called homogeneity of physical equation is applicable and deriving possible formula जैसे हमने simple pendulum formula हमने derive किया था टॉपिक्स में बड़ी डिटेल में, तो ये के 2 यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की इसको बता दें। कहता है बेस क्वांटिटी जो है इज कंसीडर्ड एज अ डायमेंशन जी। जो भी बेस क्वांटिटी है उसको हम एज ए डायमेंशन ही क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। तो जो डायमेंशन होते हैं इट टेल्स अस द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमें ये बताता है क्वालिटेटिव नेचर, यानी ये क्वांटिटी क्या है किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो उस पर ये दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव नेचर। और ये हमें क्या करती है क्वालिटेटिव नेचर बताती है, हमें नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बता देती है। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी किस किस्म की है किस नोयत की है ये हमें उसके बारे में बता देती है। और उसके अलावा क्या करती है उसकी एक्यूरेट यूनिट्स जो है बता देती है आपकी अप्रोप्रिएट ऑफ द फिजिकल इक्वेशन जी। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट हमारे पास चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम में। तो इसकी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन आप देख लें तो कहता है एफ इज इक्वल टू एम में लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डायमेंशन अप्लाई कर दी है, इस तरह राइट हैंड साइड पे भी हमने डायमेंशन अप्लाई कर दी है। एफ सिमिलर फोर्स है तो ये आपके पास फोर्स की डायमेंशन एल टी इनवर्स 2 है। और आगे हमने राइट हैंड साइड ले लिया एम में सिमिलर मैस है, ये सिमिलर एक्सेलरेशन है, हमने इन दोनों के यहाँ पे डायमेंशन अप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व कर लिया। आफ्टर सॉल्विंग हम देखे डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इक्वल डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। सो एफ इज इक्वल एम में क्या है इस डायमेंशनली करेक्ट, तो इस तरीके से इसे हम चेक कर लिए आपके पास इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है that is define the light year and what are the units and dimension of the light year जी। तो हमने लाइट ईयर को डिफाइन करना है और उसकी यूनिट्स क्या है वो बताना है और फिर उसके डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर बताना है। तो डी स्टूडेंट्स लाइट ईयर जैसे हम पहले बता चुके हैं कि लाइट ईयर क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर जी। यानी जो लाइट जो है जितना डिस्टेंस 1 साल में कवर करती है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर जी। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर जी। एंड एस यूनिट क्या होती है मीटर होती है, क्योंकि ये लाइट ईयर है डिस्टेंस और इसकी यूनिट क्या होती है मीटर होती है। और इसका डायमेंशन क्या होता है एल होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है लिहाजा इसका डायमेंशन क्या होगा बस एल ही होगा। तो लाइट ईयर डी स्टूडेंट्स इसको याद रखें कि इट इज अ डिस्टेंस light travel in 1 year, so that is called a light year, जिसे हम नूरी साल भी कहते हैं। and after that next question is that verify t is 2 pi l और g obey the principle of homogeneity जी। अब ये देखें इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके कभी कहते हैं डायमेंशनली करेक्ट कर लें चेक कर लें, कभी कहते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन देख लें, कभी कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओबे करता है नहीं करता है उसको चेक कर लें। तो वही क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के यानी कि उसको ट्विस्ट दे के चेक किया जा रहा है। तो डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दैट इज टी, तो ये आपके पास क्या है टाइम की डायमेंशन है। एंड राइट हैंड साइड आपके पास क्या है 2 पाई एल और जी स्क्वायर रूट जी। तो 2 पाई का एक नंबर है लिहाजा इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। आगे आपके पास क्या है एल और जी, तो लेंथ इसके डायमेंशन ये हमने देख के अप्लाई कर दिया। और जी आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसके डायमेंशन और पावर 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट सेम 2 पाई डायमेंशन लेस। तो आपके पास ये आपका डायमेंशन आगे फाइनल डायमेंशन आपके पास क्या टी आगे। सो हमने देख लिया डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दैट इज सर्कल टी
और यहाँ पर आपके पास dimension on right hand side of the equation, that is the t, both are equal. So dimension on left hand side is equal to dimension on the right hand side here. So which means that this equation, that is t equal to pi l over g square root, it obey the principle of homogeneity. प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या है कि हम कोई भी जो इक्वेशन में गिवन है या रिलेशन गिवन है, हम उस इक्वेशन के बोथ साइड पे डायमेंशन लेते हैं. अगर डायमेंशन दोनों इक्वेशन के दोनों साइड क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, इट्स मीन दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज डिराइव द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड प्रेशर. तो ये हम विस्कोसिटी का डायमेंशन पहले कर चुके हैं, प्रेशर का डायमेंशन कर चुके हैं. तो जस्ट हमारे पास सिंपल हम थोड़ा सा से करेंगे f6 by eta vt है. यहाँ से डिस्टेंस हमने ईटा जो है इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, ईटा एक साइड पे दिया है और इसमें फोर्स के डायमेंशन आगे आप पास के r रेडियस है और v आप पास टर्मिनल वेलोसिटी के डायमेंशन पुट कर दिए, और इसमें 6 पाई का एक नंबर है, लिहाजा ये डायमेंशन लेस है, इसको हमने इग्नोर कर दिया. और आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास ईटा के डायमेंशन आ गए जी. और फिर क्या है, प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया है. यहाँ हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, एरिया के डायमेंशन अप्लाई कर दिए आफ्टर एप्लीकेशन. तो हमने इसे सॉल्व किया, हमारे पास प्रेशर के जो डायमेंशन है दैट इज P इज इक्वल टू m L इनवर्स 1 T इनवर्स 2. तो ये हमारे पास के प्रेशर के डायमेंशन आ गए हैं. और डिस्टेंस जब भी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ही मीन उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आप उसमें डायमेंशंस वैल्यू इंसर्ट करते हैं. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट इट्स डायमेंशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, व्हाट आर डायमेंशन यूनिट ऑफ दिस. तो इसको सिर्फ जस्ट उसने स्टाइल चेंज कर दिया है, वहाँ अंडर रूट था और अब यहाँ उसने पावर 1/2 अप्लाई कर दिए. तो इसके डायमेंशन देखें FL, ये आप पास है, F से मुराद फोर्स है, हमने देखे इसमें फोर्स के डायमेंशन अप्लाई कर दिए. L से मुराद आप पास लेंथ है, इसके डायमेंशन, M से मुराद मास है, इसके डायमेंशन पावर 1/2. और इनको हमने सॉल्व किया तो ये आप पास क्या आ गया, L स्क्वायर T इनवर्स 2 और पावर 1/2, क्योंकि इनकी पावर 2 है और ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाती है. तो अंदर आप पास का डायमेंशन आ गया L T इनवर्स 1 जी. तो सो इस क्वांटिटी के डायमेंशन ये आ गए, दैट इज दिस. और फिर आगे इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है. तो ये फोर्स की यूनिट यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूटन है. L डिस्टेंस है, इसकी यूनिट के आप पास मीटर है, और M से मुराद kg है, इसके किलोग्राम है. तो सो आप पास ये सारा कैंसिल होके ये आप पास की यूनिट आ गई है जी. Now this next our question is that is write down the dimension of the viscosity and angular velocity. तो ये हम विस्कोसिटी डायमेंशन हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज F6 by eta और Vt है. ये स्टोक्स थ्योरम है. इसको हम जस्ट क्या कि यहाँ पर ये देखिए रीअरेंज कर लिया है. रीअरेंज करने के बाद ये फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन हमने इसमें अप्लाई कर दिए. आगे आ रहा आप पास रेडियस है, डिस्टेंस है, उसके डायमेंशन. V से मुराद आप पास एंगुलर वेलोसिटी है, उसके डायमेंशन L T इनवर्स 1. और ये स्पीड है, उसके डायमेंशन. तो कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास ईटा के डायमेंशन आ गए जी. और नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल थीटा बाय टी जी. तो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं जी कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वो अपने साथ एंगल बनाती है. तो ये आपके पास है, ये आपको उसका फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी. इंशाल्लाह चैप्टर 5 में आप स्टडी करेंगे. थीटा के डायमेंशन आपके पास L पावर 0 होते हैं और ये आपके पास टाइम डायमेंशन T, तो L0 T इनवर्स 1. तो ये आपके पास के डायमेंशन हो गए. तो L की जगह L पावर 0 जगह 1 लिख सकते हैं, सिंपल T इनवर्स भी आप कह सकते हैं इसके डायमेंशन जो. नेक्स्ट स्टूडेंट्स राइट डायमेंशन ऑफ वर्क एंड टॉर्क. वर्क एंड टॉर्क के डायमेंशन लिखें. वर्क का फार्मूला आपके पास FD है. तो हमने यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स पुट कर दिए एंड डिस्प्लेसमेंट इंसर्ट कर दिए. ये फोर्स का डायमेंशन क्या है, T इनवर्स 2 है, या आपका डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, और हमने इनको आपस मल्टीप्लाई कर दिया तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2. तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्क आ गया जी. एंड आफ्टर दैट ये टॉर्क हमारे पास T इज इक्वल टू RF जी. तो यहाँ पास क्या है, R से मुराद के आप पास मोमेंट आर्म में, F से मुराद क्या है फोर्स है, R मोमेंट आर्म में, ये आप पास क्या है लेंथ में आता है, डिस्टेंस में आता है. ये हम देखें R के डायमेंशन ये देखें, R के डायमेंशन L है और फोर्स F से मुराद फोर्स है. ये आप पास फोर्स की डायमेंशन हमने अप्लाई कर दिए. फाइनल इसके जो डायमेंशन हमारे पास आए दैट इज ML स्क्वायर T इनवर्स 2. यूँ हमने इस तरीके से इसके डायमेंशन जो है फाइंड आउट कर लिए.
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज राइट द डायमेंशन ऑफ इट इज एंगुलर मोमेंटम और कार के डायमेंशन फाइंड आउट करें। तो ये हम कर चुके हैं, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम MRV। तो M से मुराद मैस है, R से मुराद रेडियस है, V से मुराद स्पीड है। तो ये हमने बारी बारी क्या कर दिए, इनके डायमेंशन इंसर्ट कर दिए। आफ्टर सॉल्विंग तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन ML के T-1 आ गए। और आगे हमारे पास क्या है, टार्क डायमेंशन T = RF sin थीटा जी। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिए जी। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वहाँ आपको इंशाल्लाह ये वेक्टर्स के वाले से डिटेल में पढ़ेंगे। RF sin थीटा है और थीटा आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस है जी, क्योंकि थीटा आपके पास क्या है, दो सेम एंगल के दरमियान रेशियो है। तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता यहाँ पर। तो कहता है कि आपके पास R का डायमेंशन L लेंथ में आता है, डिस्टेंस में F आपके पास फोर्स इसकी डायमेंशन, एंड देन आपने आपसे मल्टीप्लाई कर दिया टार्क डायमेंशन दैट इज ML² T-2 यूँ हमने इस तरीके से इसके